Hello, dear students. Welcome you all to this exclusive sessions. We have been studying about non-finite verbs, and we have been talking about gerunds and infinitives and participles for long. And this is the time for solving the exercise and putting those ideas that we have learned into an exercise. Here is we have come to know that all those verbs are called non-finite verbs that does not tell us about any time of action or they are not restricted with any person. They remain the same. What are these? They are mostly two infinitives, they are mostly participles, and they are the gerunds, of course. So here is the first example. I want to meet, to meet, and to meet, and all these in three sentences you find to meet, and all they are called non-finite verbs because they are not telling us about any particular time of an action. But here, I want is a verb, this is a present tense, wants is a present tense, and wanted is a past tense. This wants present and another to meet is non-finite verb and it is to infinitive form. We also know that non-finite verbs can be infinitives, and infinitives means verb without any s or es. And next one is to infinitive, the verb that comes with to, and then ing form of verb is also called the participles. Okay, here's the kind of infinitives, and this is important one, use of the bare infinitives. Whenever you have this kind of words like feel, hear, make, find, watch, see, observe, let, they will take infinitives after it. You can see that here is a scream. You can write over there scream, and you can also write over there is a play. So I heard word, I heard scream. They let us play. And whenever you talk about had, better, would, rather, soon, we also have a base form of like this leave and like this suffer. They're all base form of verbs. Okay. So come here for exercise. You need not to ask. नीड नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, टू आस्क लगाएंगे. आई यूज टू लिव, मे आई यूज, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, आई वुड लाइक हिम टू गो, शी वुड प्रेफर टू विजिट, you seem you seem to know him well, where would you like to have dinner, you must leave the room, please permit me to stay. तो आप देखें कि नीड नॉट के बाद टू लगा रहे हैं हम, यूज के बाद टू लगा रहे हैं, मे आई के बाद यूज बेस फॉर्म लग रही है, ये इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, दे रिफ्यूज के बाद टू लग रहा है. अब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद या तो आईएनजी जिनके बाद या तो बेस फॉर्म लग रही है, टू इन्फिनेटिव लग रही है. तो ये प्रैक्टिस के साथ आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे. ये आपके सामने मैंने आंसर की लगा दी. यू नीड नॉट टू आस्क, आई यूज टू लिव, और मे आई यूज टू योर फोन. ठीक है. इसमें जब भी आप याद रखिएगा बेटा, जब कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होगा ना, उसके साथ फाइनाइट वर्ब लाजमी यूज होगा. ये याद रखना है बात आपने. मैंने क्या बोला है, लेट मी लिसन अगेन, दोबारा सुने. जहां कहीं फाइनाइट वर्ब यूज, जहां कहीं नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होगा, वहां कहीं ना कहीं फाइनाइट वर्ब जरूर होगा. नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब के बगैर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता. ठीक है. तो इसमें यू नीड नॉट टू आस्क. अब इसमें देखें, नीड नॉट जो है आपका फाइनाइट है, और नॉट जो है वो टू आस्क जो है वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा. ठीक हो की बात. इस तरह से हम कहते हैं मैं यूज योर फोन, तो इसमें मे आए और यूज दो वर्ब हैं. दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ये रिफ्यूज जो है ना वो आपका मेन वर्ब है. टू एक्सेप्ट जो है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये टू इन्फिनेटिव के साथ आएगा. ठीक है. अच्छा जी, अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, ये यहाँ पे ये एक्सरसाइज हो गई. हम कहते हैं कि she would prefer to visit, you seem to know, would you like to have, you must have the room, और प्लीज परमिट मी टू स्टे. अब ये परमिट भी वर्ब है और टू स्टे भी है, लेकिन ये जो टू स्टे है ये हम क्या कहेंगे कि ये टू इन्फिनेटिव है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये परमिट की वजह से टू स्टे आया है यहाँ पे. अगर परमिट ना होता तो यहाँ पे टू स्टे भी नहीं लगाते हम. यहाँ पे अगर ये प्लीज डिनाइड,
ही डिनाइड स्टेइंग हो जाता है डिनाइड के साथ। तो मतलब ये जो पहले फाइनाइट वर्ब होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि मेरे पास टू इन फ्रंट ऑफ आएगा या बेस फॉर्म आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते रही अगली एक्सरसाइज की तरफ। ये बेटा जी वो जेरेंड है, मतलब जेरेंड से मुराद ये है कि वो वाले वर्ब जिनके साथ आईएनजी लगा होता है, जैसे बर्निंग है, जैसे प्लेइंग है, जैसे कमिंग है, जैसे ये सर अब ये सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकते हैं, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पर भी आ सकते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी आ सकते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कोई घबराने की बात नहीं है, इसका ताल्लुक होता है वर्ब के साथ। कुछ वर्ब ट्रांसटिव होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, कुछ वर्ब इनट्रांसटिव होते हैं जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। मतलब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स इज एम आर वॉज वर जैसे, इसके बाद हम जो है वो आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे देखिए, नो वन शुड अलाउड टू प्ले क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड, अ क्लीन स्विमिंग पूल इज द प्लेस आई लव टू स्विम इन, he received an award because he sang well. She gets a lot of pleasure when she reads good books. He is passionate about music. He hopes to be famous one day. अब ये कहता है ये 5 सेंटेंस आपके पास, इसको रीअरेंज करें, दोबारा लिखें और जेरेंड के साथ लिखें। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर की मौजूद है, ये मैंने लिख दिया। पहले ये देखें, प्लेइंग क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड शुड नॉट बी अलाउड। तो प्लेइंग क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड शुड नॉट बी अलाउड, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें जेरेंड तलाश करें तो प्लेइंग जेरेंड होगा, और ये नॉन फाइनाइट होगा। और इसका असल फाइनाइट वर्ब कौन सा है, शुड नॉट अलाउड, ये देखिए शुड नॉट बी अलाउड। तो ये शुड नॉट बी अलाउड के बारे में हमें पता चल रहा है। ठीक है, शुड नॉट बी अलाउड, क्या नहीं करना चाहिए काम, प्लेइंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आई लव स्विमिंग इन ए क्लीन स्विमिंग पूल, इस तरह से मेन वर्ब यहाँ पे आई लव है। आई लव व्हाट, आई लव स्विमिंग, कहाँ पे, इन अ क्लीन स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग एज एन एडजेक्टिव के तौर पर आया हुआ है पूल से पहले, और ये स्विमिंग एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है, और ये भी जेरेंड है, और ये भी, ये जेरेंड नहीं है। स्विमिंग पूल जेरेंड नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है जेरेंड यहाँ पे, इसलिए कि ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ही रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर सिंगिंग वेल। अब ही रिसीव्ड एन अवार्ड, उसने एक रिवॉर्ड को मिला, फॉर, अब ये फॉर क्या चीज़ है, आपकी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो भी क्या होता है, जेरेंडी होता है। अच्छा, अब हम नंबर 4 पे एक्सरसाइज है हमारी, नंबर 4 पे क्वेश्चन है, शी गेट्स अ लॉट ऑफ प्लेजर इन रीडिंग गुड बुक्स। अब इन क्या चीज़ है बच्चों, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला भी वर्ड हमेशा नाउन होता है, और वो नाउन अगर आईएनजी फॉर्म में हो तो वो क्या कहलाता है, जेरेंड कहलाता है। इस तरह से ही इज होपिंग टू बी फेमस वन डे बिकॉज ऑफ हिज पैशन। अब ये आई डोंट थिंक सो कि दिस इज गुड ऑप्शन, ये कुछ सही नहीं है, ये जेरेंड नहीं बन रहा, ही इज होपिंग, तो उसने क्या सिंपल कर दिया, he is hoping to be famous one day because of his passion for music। ये बेटा जेरन नहीं बनेगा बिल्कुल भी, ये आई डोंट एग्री टू दिस की इन द बुक, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। होपिंग टू बी, ये ना आना चाहिए था, होपिंग टू बी फेमस होना चाहिए था, होपिंग टू बी फेमस वन डे बिकॉज ऑफ हिज पैशन फॉर म्यूजिक। होपिंग, होपिंग ये होना चाहिए था, होपिंग टू बी फेमस फॉर हिज पैशन फॉर म्यूजिक, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। ही वॉज वेरी मच पैशनेट, ही वॉज पैशनेट, इसके होना चाहिए, ही इज पैशनेट अबाउट म्यूजिक। होपिंग टू बी फेमस ये होना चाहिए, होपिंग टू बी फेमस, ही वॉज पैशनेट फॉर म्यूजिक, इस तरह करके होना चाहिए था। ये सही, ये सेंस, ये इसका ऑप्शन जो है ना वो बुक के अंदर गलत दिया हुआ है। तो क्योंकि अगर ही इज होपिंग करेंगे तो ये तो आपका क्या बन रहा है, ही इज होपिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के तो ये तो फाइनाइट वर्ब बन रहा है, तो नाइन फाइनाइट था ना बना। तो ये होना चाहिए था, होपिंग टू बी फेमस वन डे, ही इज पैशनेट फॉर म्यूजिक, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, वेल क्लास, जी बेटा जी, ये कॉम्प्लीमेंट इन ट्रांजिटिव के साथ होते हैं। नेक्स्ट बेटा चलें अगले एक्सरसाइज में, ये पार्टिसिपल्स हैं। अब पार्टिसिपल्स वो वाले वर्ब होते हैं जो वर्ब प्लस आईएनजी भी होता है और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म भी होता है। वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म अगर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और अगर वर्ब प्लस आईएनजी हो तो क्या होते हैं बेटा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये भी क्लियर है हमको। अब हम यही देखें एक्सरसाइज, वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब एक्सरसाइज हमारे सामने ये है, द एक्सरसाइज इज दैट
कि हमने नॉन फाइनाइट वर्ब पिकअप करने हैं, स्टेट द काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब की हम बात करेंगे. ही कुड नॉट हेल्प लॉफिंग, और स्टेट द काइंड ऑफ नॉन, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब एज ए जेरेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. और इस तरह से ही ऑलवेज रिफ्यूज टू बे, अब ये टू बे नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये टू इन्फिनेटिव है. इस से शी इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब, तो शी, ये कोई बेटा जी इसमें ये देखें, ये टेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है सिंपली, ये कोई पार्टिसिपल नहीं है. आई कैन नॉट अलाउ यू टू बी, अब ये कैन नॉट अलाउ फाइनाइट वर्ब हुआ, टू बी, टू बी नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ, और ये टू इन्फिनेटिव है. तो क्लियरिंग द थ्रोट, अब ये एज ए जेरंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है फ्रेज में. और आई सॉ हिम राइडिंग अ डंकी, अब ये देखो सॉ आपका पास्ट टेंस है, और राइडिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर आया हुआ है. ठीक है. आई सॉ अ मैन डूइंग अ डंकी, राइडिंग ऑन अ डंकी, राइडिंग ऑन भी हो सकता है, राइडिंग अ डंकी भी हो सकता है. तो इट कैन बी एज ए पार्टिसिपल और इट कैन बी ए जेरंड, ये डिबेटेबल इशू है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन है नॉन फाइनाइट वर्ब. हेयरिंग द नॉइस, ये भी पार्टिसिपल फ्रेज के तौर पर आया हुआ है, इसको भी लोग कुछ जेरेड कहते हैं. तो ये है, ये भी नॉन फाइनल वर्ब है. मेन वर्ब इसका है रैन, रेन, ही रैन टू द विंडो. तो शी इज रियली गुड एट कंफ्यूजिंग पीपल. अब बेटा ये पार्टिसिपल है, कंफ्यूजिंग, सॉरी एट preposition हुआ, एट preposition इसके बाद आईएनजी फॉर्म हुआ, लग प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना. तो चूंकि preposition के बाद आ रहा है, preposition के बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होता है, तो नाउन की जगह पे लिहाजा ये क्या बन जाएगा, जेरेंट बन जाएगा. टू सक्सीड इज ऑलवेज अ वंडरफुल फीलिंग्स, ये एज ए, देखें वंडरफुल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बाद आने वाला वर्ड नाउन होता तो ये भी जेरेंट है. ठीक है. तो नोइंग हर ही इज, तो ये भी फ्रेज के तौर पर आ रहा है, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, जेरेंट भी है और पार्टिसिपल भी कह सकते, दोनों कह सकते हैं. हैविंग सीन द मूवी, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका. ही डिड नॉट गो विद फ्रेंड्स, दे आर दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, डोंट डिस. अब बेटा ये दे आर हैविंग, ये टेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ टेंस. तो यू नीड नॉट स्टॉप मेकिंग, ये भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये एज ए जेरेंट के तौर पर आ रहा है. आई एम गोइंग टू द मार्केट, कोई बेटर, ये सिंपल टेंस है, आई एम गोइंग टू, इसमें कोई जेरेंट नहीं है, कोई पार्टिसिपल नहीं है. फ्राइटेंड बाय द स्टॉर्म, वी शॉट शेल्टर इन, वी शॉट शेल्टर इन बस स्टेशन, ये आपके आंसर बेटे की यहाँ पर आ रही है. देखें यहाँ पे, वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, जेरेंट है लाफिंग. यहाँ पे टू बे पार्टिसिपल है, टू पार्टी, इसको पार्टिसिपल नहीं है, सॉरी, ये टू इन्फिनेटिव बेटा कहेंगे, ये रॉन्ग है यहाँ पे पार्टिसिपल, ये इसको हम टू इन्फिनेटिव बोलेंगे. टू बे पार्टिसिपल है, सॉरी, टू उबे क्या कहेंगे, टू इन्फिनेटिव है यहाँ पे. और शी इज लुकिंग, लुकिंग जेरेंट फॉर, नहीं ये भी गलत है, शी इज नॉट लुकिंग, जेरेंट नहीं है ये वाला. शी इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब, दैट्स ऑल, सिंपल टेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ भाई. और आई कैन नॉट अलाउ यू टू बी इन्फिनेटिव हुआ, टू इन्फिनेटिव. और क्लियरिंग पार्टिसिपल बिल्कुल ठीक है. आई सॉ मैन राइडिंग, जेरेंट, जेरेंट बिल्कुल ठीक है. हियरिंग पार्टिसिपल है, बिल्कुल ठीक है. शी इज रियली गुड एट कंफ्यूजिंग, जेरेंट है. और टू सक्सीड इन्फिनेटिव है. और नोइंग पार्टिसिपल है. हैविंग पार्टिसिपल, हैविंग भी पार्टिसिपल है. और यहाँ पर जो हैविंग है ये भी पार्टिस, दे आर हैविंग पार्टिसिपल है ना, गलत. दे आर हैविंग, दे आर हैविंग व्हाट, दे आर हैविंग, दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, ये एज ए बेटर टेंस के तौर पर इस्तेमाल, कोई पार्टिसिपल नहीं है. और ये नीड नॉट, नीड टू स्टॉप टू इन्फिनेटिव है, बिल्कुल ठीक, मेकिंग जेरेंट है यहाँ पे. और आई एम गोइंग, ये कोई पार्टी, ये पार्टिसिपल एज ए टेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ, आई एम गोइंग पार्टिसिपल एज ए टेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ. और फ्राइटेंड ये पार्टिसिपल है, बिल्कुल ठीक है, बाय द स्टॉप, ठीक है. लेकिन ये है हमारे पास एक्सरसाइज है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है, आई कांट अफोर्ड, अब बताएं बेटा, आई कांट अफोर्ड डैश आउट, अब बताएं कांट अफोर्ड टू आएगा या कांट अफोर्ड ईटिंग आएगा, कांट अफोर्ड टू ईट होगा. प्लीज माइंड मी टू बाय के प्लीज माइंड मी बाइंग, बाइंग होगा. स्टॉप कंप्लेनिंग होगा या स्टॉप टू कंप्लेन होगा, स्टॉप कंप्लेनिंग होगा. अलीना वाज क्वाइट अनवेल बट शी इज गेटिंग बेटर होगा. और ये टेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. ही सिंपली रिफ्यूज्ड आंसरिंग, रिफ्यूज टू आंसर, टू आंसर होगा. ही स्टिल रिमेंबर
टू बी इन द हॉस्पिटल होगा, या ही स्टिल रिमेम्बरिंग बीइंग इन द हॉस्पिटल होगा। अच्छा, अब इसका हमें हमें मीनिंग के लिहाज से देखना होगा। यहाँ पे देखें व्हेन ही वाज 4, अब बात पास्ट की हो रही है। जब पास्ट की हो रही होती है तो हम आईएनजी के साथ यूज करेंगे, ही स्टिल रिमेम्बर बीइंग इन द हॉस्पिटल व्हेन ही वाज 4। और द बेबी बिगेन के बाद टू क्राई होगा, आई हैव टू बी इन यूनिफॉर्म एट वर्क बट आई डिसलाइक, डिसलाइक के बाद वेयरिंग के साथ होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से चेक कर लें। टू ईट, टू बाय, प्लीज रिमाइंड मी टू बाय, और स्टॉप कंप्लेनिंग but she is getting well, refuse to answer, remembers being, और they begin to cry, और ये wearing। अच्छा बेटा, इसके अंदर आप एक बात सुने, ये जो रिमेंबर वाले दो वर्ड आए हैं, नंबर 2 में हमने टू बाय लगाया है और हमने नंबर 6 में आईएनजी लगाया। इसकी रीजन बेटा सुन ले, ऐसा क्यों किया हमने, व्हाई वी हैव डन इट, व्हाई वी डिड इट। प्लीज रिमाइंड, अच्छा वो रिमाइंड है मुझे याद, अभी एक्शन होना है ये। व्हेन वी गो टू द, व्हेन वी गो, जब हम मार्केट जाएंगे, अब इसका मतलब व्हेन वी गो टू द, फ्यूचर टेंस में जा रहा है, व्हेन वी गो टू द मार्केट, तो मुझे याद करवाना कि हमने चाय लेनी है, अभी एक्शन होना है। होने के लिए हम कहते हैं प्लीज रिमाइंड मी टू बाय। यहाँ पर जो रिमेंबर वाला एक्शन है हो चुका है जब मैं इसलिए आईएनजी के साथ आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा जी, हुजैफा ने हाथ खड़ा किया, बेटा जरा वेट करो, मैं एक मिनट में चीजें क्लियर कर लूंगा। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारी आंसर की हो गई, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आईएनजी और ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अ पासर बाय वाज सीन हेल्पिंग द इंजर्ड मैन होगा, ठीक है, और ही केम रनिंग टू मी होगा, और ही सॉ कार्स पार्क्ड ऑल ओवर द प्लेस होगा, आई हर्ड हिम टॉकिंग टू हिमसेल्फ होगा, हैविंग फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस ऑल हिज लाइफ ही फाउंड द प्रेजेंट सिनेरियो एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग, भी हो सकता है, डिप्रेस भी हो सकता है, ठीक है ना, ही फाउंड डिप्रेसिंग भी है, ही फाउंड डिप्रेस भी हो सकता है। Or by this family and friends, he left the town, disowning by his family, or having regained some strength, or having reached a decision, or she danced down the plain, singing cheerfully, or frustrating at losing the class game, he kicked his chair over। तो देखिए इसका आंसर में बड़ा हेल्पिंग है, नंबर 2 के अंदर रनिंग है, और पार्ट है, और हर्ड हिम टॉकिंग है, डिप्रेसिंग है, और 6 में डिसओन्ड है, डिसओन्ड हिज फैमिली। और अच्छा, अब देखिए मजे की बात सुनेंगे, अगर आप कहेंगे ना डिसओनिंग बाय हिज फैमिली ही फ्रेंड्स ही लेफ्ट ओवर, उसने खुद फैमिली छोड़ी है, और डिसओन्ड बाय हिज फैमिली, उसको फैमिली ने छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये देखिए फर्क पड़ेगा। और नंबर 7 के अंदर रीगेन्ड, हैविंग रीगेन्ड हिज स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को हासिल करने के बाद। नंबर 8 में हैविंग रीच्ड अ डिसीजन, ही डिसाइडेड टू टेक डिसीजन। और नंबर 9 के अंदर शी डांस डाउन द लेन सिंगिंग चेयरफुली। और नंबर 10 के अंदर फ्रस्ट्रेटेड लूजिंग गेम। ठीक हो गया जी। नंबर ई बेटा जी देखेंगे, हैविंग बीन वॉक स्लोली ही अराइव्ड लेट फॉर स्कूल। करना क्या है हमने, इसको इसको हमने करना ये है कि each of the following sentence contains an error, locate and rewrite the sentence correctly। हमने बेटा इसको सही करके लिखना है, तो let's have a discussion। एक मिनट, खिजर आप क्या कह रहे हो, खिजर खिजर प्लीज गिव इट एज होमवर्क। हाँ नहीं, फोर्थ गलत है, सिक्स कराऊंगा, बिल्कुल ठीक है। लिटरली ये लेट्स रिवाइज है, और ये आपका होमवर्क है जो आपने करना है। अब इसमें होमवर्क में करना आपने क्या है, ये बेटा दिया आप इसको, जब ये मैं वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके आप बेशक मुझे इसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या उसी वीडियो के नीचे जो सेक्शन कमेंट बना हुआ है उसके अंदर बेटा जी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको बेटा जी देखें क्या करना है आपने। हैविंग बीन, इसको कहता है कि आप इसमें करेक्ट करें कि each of the following sentence contain an error, locate it, rewrite the sentence correctly using an appropriate नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को समझ लगे, नॉन फाइनाइट वर्ब वो है जो टू इन्फिनेटिव है, फिनिटिव है, या पार्टिसिपल है, या जेरेंड है। ठीक है, तो जब भी पार्टिसिपल, जब भी कोई आप नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं, इससे पहले कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब लाजमी होना चाहिए, वो किसी भी टेंस का हो सकता है। जैसे हैविंग बीन वॉक स्लोली ही अराइव लेट फॉर स्कूल, ये ही अराइव लेट जो फाइनाइट वर्ब है, और हैविंग बीन वॉक स्लोली, और आहिस्ता चलने के बाद ही अराइव्ड अ लिटिल लेट।
तो हैविंग बीन वॉक स्लोली ही अराइव्ड लेट फॉर स्कूल, ये ठीक सेंटेंस है, ही अराइव्ड लेट फॉर स्कूल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेल हिम स्टॉप टॉकिंग होगा, टेल हिम स्टॉप टॉकिंग, उसे कहो कि वो रुकना बंद कर दे। ये दो चीजें आपको वो कहता है, इज द फॉलोइंग लोकेटेड, रीराइट द सेंटेंस करेक्टली यूजिंग एन एप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप इसको बताएंगे कि यहाँ पे टॉकिंग आएगा, और यू मस्ट नॉट टू कंप्लेन ऑल द टाइम, यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट टू कंप्लेन, मिस्टेक है बेटा इसके अंदर, ठीक है। अब आपका ये काम है कि आप इसमें बताएंगे कि कहाँ पे टू इन्फिनेटिव आएगा, कहाँ पे जेरेंड आएगा, और कौन सी प्रॉब्लम है। तो फिर हम इसको जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर और जो है ना वो पर्सनल आप चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ले बेटा जी, मैं आपकी माइक ऑन कर रहा हूँ और आप मुझसे आंसर कर सकते हैं लाइव। जी बेटा जी, अब आप मुझसे क्वेश्चन कर लें, कोई जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे सिर्फ एक चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी कि